Today is our 33rd session. Let's start with an invocation. Om Asato Ma Satgamaya Tamaso Ma Jyotirgamaya Mrityurma Amritam Gamaya. Today is Gudi Parva. So before we start on Yog Vashisht, let us talk a little about Gudi Parva. And Manisha had been just telling me how Gurudev had given such beautiful insights into what Gudi Parva is and how it is celebrated all over India. And the thought that occurred to me was that we should seize every opportunity that comes our way to dispense with our weaknesses and start afresh on any New Year's Day, whether it is our Gudi Parva or through the Western culture, the 1st of January. This gives us a new impetus and a new inspiration to remove the weaknesses that have been hounding us and start on a new platform with a new vision and a new set of resolves. Gudi Padwa is the first year of the Chaitra month, and as per our Vikram Samvat, it is actually the year 2081. That is, it is 57 years ahead of the English calendar. We should try to preserve our old cultures so that we remain rooted to who we are and we revive our own civilization, which is so deep and so satisfying and so rewarding. It is celebrated all over India and with different names. And simultaneously, it happens on the first day. Some people earlier, there was a tradition of starting the new year the next day after Sankranti, that is 14th of January. But now it is accepted as the first day of the Chaitra month. So this was the day when Rama's 14 years of Vanvas were getting over and he set out for Ayodhya after having won back his wife from the clutches of Ravan, the king of Lanka. Also, it was the day when the Agyatvas of the Pandavas got over and they were now eligible for their kingdom. We also equated with Vasant Panchami, and it is celebrated as Vaisakhi in Punjab, as Gudi Padwa in Maharashtra, as Ugadi in Tamil Nadu and many other states of southern India. There is a small story connected to Gudi Padwa in our Puranas, and that story goes like this, that there was a great Rakshas whose name was Somkasur, and he stole away the Vedas from Brahma, and when this was reported to Vishnu, Vishnu himself went, he took the Vedas and he went under the sea. He was hiding in the sea with the Vedas. So Vishnu took the roop of a mermaid, a male mermaid, and he went inside the ocean and fought this Somkasur, this giant or Rakshas, and then he defeated him, brought back the Vedas and gave them to Brahma. And on this very day, Brahma started with the creation. सृष्टि का उदय हुआ इस दिन, और इसके लिए हमको अंदर से बहुत ग्रेटफुल होने की जरूरत है
क्योंकि हमको ये ह्यूमन बर्थ मिला, इतने सालों की आप सोचिए बिलियंस ऑफ इयर्स की एवोल्यूशन के बाद हम इस स्तर पर आए हैं कि हम इस लाइफ टाइम में हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी है कि हम सेल्फ रियलाइज हो सकते हैं। हमको गुरु का आशीर्वाद हमारे सिर के ऊपर है और हमारे अंदर वो भाव है कि हम इस जीवन को सार्थक बनाएं और अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो। तो इस कहानी के बाद हम अब योग वशिष्ठ पर आ जाते हैं, जिसमें आज हमारे लिए भागीरथ की कहानी है। पर योग वशिष्ठ it only concentrates on Bhagirath getting the self-realization by his efforts. It does not bother about the story of Bhagirath, how he brought down Ganga. But in our minds, that association is so strong that I have added even that story so that the whole of Bhagirath's life can be completed and presented to you at one go. Now, to start with the story of Bhagirath. In this story, it will be revealed to us how life in this world, how to live life in this world with no expectations, no attachments, no likes or dislikes. There lived a great king called Bhagirath, who, while still in his youth, started contemplating about life as a whole. So the first point that he arrived at was that life is largely meaningless. Number two, we run after the pleasures which are incapable of giving lasting satisfaction. 3, there is no pleasure which does not bring with it pain. 4, no pleasure after it is experienced remains as satisfying or as attractive as it appeared at the starting point. 5, wealth, wife, or son, in whatever lies our love, once acquired, do any of these give us peace or happiness? Number 6, then why are we running after them as though bewitched? हमारे ऊपर जैसे भूत चढ़ जाता है और हम इन्हीं के पीछे भागते रहते हैं. Number 7, we put all our energies in acquiring them. Why? 8, why have we never thought about the hollowness of worldly things? Number 9, now that this has occurred to me, I have given it enough thought and everything has started looking poisonous to me. Number 10, this drama of life is a mirage which can never quench our thirst. हमारी प्यास कभी बुझ ही नहीं सकती अगर हम संसारिक चीजों के लिए की तरफ भागते रहेंगे. Contemplating thus, he started hating worldly things, and his search for the true meaning of life began earnestly. At this time of life, he came upon Guru Tritul. He was living in his ashram. When he arrived there, Bhagirath bared his heart to the Guru, who was very happy to see true Vairag having emerged in Bhagirath. He said, the true goal of life cannot be attained through pleasures. The goal is nothing short of permanent bliss and eternal peace. Renounce the thought of sense pleasures. Quit the idea of getting joy out of bodily activities. Wife, children, success and failure, even gods and devtas. उनको भी पूजने में हमको वो lasting pleasure और lasting satisfaction नहीं मिल सकता है. Devote yourself
to contemplating upon your own source. तुम कौन हो, तुम्हारा स्वरूप क्या है, उसमें कैसे स्थित हो सकते हो? उन्होंने कहा कि जब किसी भी वस्तु की तीव्र कामना होती है तो वह हमें सदा हासिल हो जाता है. So leave all other passions and become passionate about getting to know the self. Once you are there, there is nothing more to be gained. You have achieved the highest. You will automatically go about, go above worldly desires. गुरु त्रितुल की बातों का भागीरथ के ऊपर गहरा प्रभाव पड़ा. सब ओर से ध्यान हटाकर वह आत्मचिंतन में लग गया. So much so that he became totally disinterested in all matters of the state. थोड़े ही समय में उसने अपने सब धन और राज का त्याग दिया. केवल एक धोती और अंगोछा लेकर राजमहल से निकल पड़ा. घूमते घूमते आत्मचिंतन चलता रहा. जिसे मैंने मैं करके माना था, यह शरीर, यह तो मैं हुई नहीं, क्योंकि मैं तो इसको जानता हूं. यह ऑब्जेक्ट है और मैं सब्जेक्ट हूं. मैं जो है वह इससे अलग है. प्राण, प्राण भी तो नहीं हूं, उसको भी तो मैं जानने वाला हूं. तो उससे कुछ सटलर, कुछ उससे और अंदर, कुछ उससे ज्यादा पावरफुल. वी हैव हर्ड द फ्रेज पेन इज माइटियर देन द स्वॉर्ड. मतलब जो जितना सटल होता जाता है उतना ज्यादा पावरफुल होता जाता है. अंत में वह अपने साक्षी स्वरूप आत्म पद पर परम शांति को आत्म पद पर पहुंच गया और परम शांति हासिल कर ली. अब उसने देखा कि ये शरीर 6 तरह के चेंजेस से गुजरता है. उन चेंजेस से मैं दुखी सुखी क्यों हूं? क्योंकि मैं तो उससे अलग हूं. 6 चेंजेस क्या? जन्म, फिर बालक, फिर यूथ, फिर वानप्रस्थ, फिर संन्यास और फिर डेथ. इस तरह से हम लाइफ के चेंजेस से गुजरते. वृद्धावस्था आ जाती है तब हम संन्यास लेते हैं. जब और थोड़े उसके थोड़ा पहले हम इससे अलग होते हैं क्योंकि ये शरीर अब कमजोर हो गया है. ये सारे चेंजेस शरीर के हैं. इसको देख करके मैं दुखी सुखी क्यों हो रहा हूं? अब देखिए, भूख और प्यास. भूख और प्यास, जो आदमी कोमा में होता है तभी डॉक्टर कहते हैं कि नली लगा करके इसके भीतर खाना पहुंचाओ, क्योंकि भूख और प्यास प्राणों का धर्म है. सुख और दुख मन का धर्म है. कर्तापन अहंकार का धर्म है. ये सब चीजें मुझसे अलग हैं. मैं तो वह शांत और निर्मल साक्षी स्वरूप. उसने देखा कि उसके भीतर किसी भी प्रकार के मोह या घृणा नहीं थी. सबसे समता भाव और प्रेम था. वो उसका व्यवहार भी बदल चुका था. उसके लिए देश या संसार और वन एक जैसा था. एक बार जब वो भ्रमण कर रहा था तो वो ऐसी जगह पहुंचा जहां पर वो पहले राज करता था. वहां उसने भिक्षा मांगी और ऐसा करने पर उसके दिल में कोई हलचल, कोई विकार उत्पन्न नहीं हुआ. लोगों के बहुत कहने पर भी उसके मन में राज करने की इच्छा नहीं आई. इस समय में वो अपने गुरु त्रितुल के आमने सामने हो गया और बहुत दिनों तक उन्होंने आत्मचर्चा करी और उसका आनंद लिया. स्वर्ग लोक से सिद्धों ने आकर उनकी पूजा की. देवताओं ने विषय रसों के अनेक लालच दिए. अप्सराओं ने अपने रूप यौवन से उन्हें लुभाना चाहा, पर उनके आत्मज्ञान के आगे ये सब बेमायने था, मीनिंगलेस था. उनकी स्थिति परम आनंद की थी. भ्रमण करते हुए भागीरथ एक ऐसे देश की ओर निकल पड़े जहां के राजा का देहांत हो गया था
और मंत्री नए राजा की तलाश में था। साधु के वेश में भी मंत्री ने राजसी लक्षण भागीरथ में देखे और उन्हें राजा बनने के लिए आमंत्रित किया। सर्व के कल्याण के लिए और अपना कोई अहित न देखते हुए भागीरथ ने स्वीकार किया और उस राज्य पर बहुत अच्छा शासन किया। इस राज्य की खबर दूर दूर फैल गई और भागीरथ प्रसिद्ध हो गए। इस बीच उनके अपने राज्य की स्थिति बहुत बिगड़ गई थी और शत्रुओं ने चारों तरफ घेर लिया था। वहां की प्रजा ने भागीरथ को खबर भेजी। भागीरथ उनके बुलाने पर वहां पहुंचे, शत्रुओं को मार गिराया और दोनों राज्यों पर निस्संग और निरपेक्ष होकर उन्होंने राज्य किया। राज्य करते करते उन्हें ध्यान आया कि उनके 60,000 पितर कपिल मुनि के भस्म कर देने के कारण अभी तक सदगति को नहीं प्राप्त हुए हैं। उनकी सदगति तभी हो सकती है जब गंगा धरती पर बहने लगेगी। यह सोचकर उन्होंने बहुत काल तपस्या करी। अब इसकी कहानी मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूँ। अयोध्या में एक बार सगर नाम के एक राजा हुए थे। उन्होंने 2 शादी करी थी, पर उनकी एक भी संतान नहीं थी। पटरानी का नाम था केशनी, दूसरी रानी का नाम था सुमति, जो राजा अरिष्ट नेमि की बेटी थी। भृगु पर्वत पर दोनों रानियों के साथ जाकर के उन्होंने तपस्या करनी शुरू करी संतान प्राप्ति के लिए। कुछ समय के बाद महर्षि भृगु प्रसन्न हुए और उन्होंने वर दिया कि उनके अनेकों पुत्र होंगे। एक पुत्री एक पुत्र को जन्म देगी और दूसरी पुत्री से 60,000 पुत्र होंगे। कौन एक जन्म देगा, तुम दोनों की इच्छा पर निर्भर है। केशनी ने एक पुत्र की कामना की और सुमति ने 60,000 पुत्र मांगे। एक पुत्र का नाम असमंजस रखा। सुमति के गर्भ से एक तुम्बा तुम्बा निकला। तुम्बा मतलब समथिंग लाइक अ पंपकिन। उस पंपकिन को जब तोड़ा तो उसके अंदर से 60,000 छोटे 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 बच्चे निकल आए और वो ही ये 60,000 पुत्रों की तरह से राजा सगर के 60,000 पुत्र और एक पुत्र असमंजस हो गया। अब क्या हुआ, ये असमंजस जो था ना, ये बहुत ही दुराचारी था, खराब व्यवहार वाला था। वे उन छोटे छोटे बालकों को सरयू नदी में फेंक देता था और इसमें इसको बहुत मजा आता था। अब उन्होंने सोचा कि भाई इसकी शादी कर दो, एक कन्या से इसकी शादी हो जाएगी तो शायद ये सुधर जाएगा। तो क्या कन्या से शादी होने से सुधरता है कोई? वो तो ज्ञान से सुधरेगा ना। अज्ञान का नाश केवल ज्ञान से हो सकता है। हमने अपने जीवन में भी देखा है कि जब हमको ज्ञान आया तब हमारे अंदर चेंजेस आने लगे, है ना। तो उन्होंने अंत में राजा सगर ने असमंजस को देश निकाला दे दिया। अब उसके जाने के बाद उसकी पुत्री ने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम था अंशुमान और वो बहुत ही सदाचारी था। कुछ समय के बाद राजा सगर ने एक अश्वमेध यज्ञ किया। उस घोड़े को कोई रोकने का साहस नहीं कर सकता था और वो धड़ाधड़ बहुत से क्षेत्र के को लांघता हुआ आगे बढ़ रहा था। पर फिर कुछ दुष्टों ने उसे पकड़ लिया और पकड़ करके उसको कपिल मुनि के आश्रम में पाताल में ले जाकर के बांध दिया। अब जब बहुत दिनों तक ये घोड़ा मिला नहीं तो राजा सकर ने अपने 60,000 पुत्रों से कहा कि तुम जाकर के वो घोड़ा ढूंढ करके लाओ। तो ये 60,000 पुत्र चारों तरफ फैल गए। इन्होंने बहुत खोजा लेकिन घोड़ा कहीं नहीं मिला क्योंकि वो तो पाताल चला गया था। तो इन्होंने ये निष्कर्ष पर पहुंचे कि भाई ये धरती के ऊपर तो है नहीं, तो धरती को खोद करके नीचे जाना पड़ेगा। तो इन्होंने धरती को खोदना शुरू करा। तो वो इतना खोदा धरती को कि सारी धरती में हाहाकार मच गया और देवताओं ने विष्णु भगवान या ब्रह्मा को अप्रोच किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, तो इस तरह से कर रहे हैं। तब क्या हुआ
कि ब्रह्मा ने कहा कि देखो, इस समय सृष्टि की संभाल का दायित्व कपिल मुनि को दिया गया है, तो इसलिए वे ही इसका कुछ भी निदान कर सकते हैं। अब क्या हुआ कि एक बार जब ये लोग ढूंढ रहे थे और बहुत बौखलाए हुए थे, इनको एक रास्ता दिखाई दिया, और जो इनको लगा कि ये शायद उनको पाताल लोक तक ले जाएगा, तो वो उस रास्ते पर निकल पड़े और पाताल पहुंच गए और कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए, और वहां उन्होंने देखा कि घोड़ा बंधा हुआ रखा है और कपिल मुनि समाधिस्थ बैठे हुए हैं। तो इन्होंने सोचा कि भाई ये तो कपिल मुनि ने ही घोड़े को बंदी बनाया होगा और अब यहाँ पर बांध रखा है, तो हम लोग कपिल मुनि को मार देते हैं और घोड़े को लेकर के जाते हैं। तो तो क्या हुआ कि जैसे ही वो लोग मारने की तैयारी में थे, तो कपिल मुनि की समाधि टूट गई और उन्होंने देखा कि ये लोग सब मेरे सामने खड़े होकर के मेरे ऊपर आक्रमणकारी मुद्रा में हैं। तो उन्होंने अपनी एक नजर से उन सबको भस्म कर दिया और फिर से उन्होंने समाधि ले ली। अब ये सब के सब वहां पर भस्मसात होकर के पड़े हुए हैं, और इधर अंशुमान जो बहुत सदाचारी था, वह अपने चाचाओं की राह देखते देखते खुद खोजने के लिए निकल पड़ा। वह भी अंत में कपिल मुनि के आश्रम में पहुंचा और उसने चाचाओं को भस्म देखा और बहुत दुखी हुआ। उसने बहुत तप किया कि वह उन्हें तारे, पर ऐसा न हो पाया। इसके बाद कई जेनरेशन समाप्त हो गए। इक्ष्वाकु और फिर राजा दिलीप, और राजा दिलीप के एक महाप्रतापी पुत्र हुआ जिसका नाम था भागीरथ। भागीरथ ने पैर के नाखून पर खड़े होकर लंबी तपस्या करी। इससे ब्रह्मा प्रसन्न हो गए, वरदान मांगा कि मैं अपने 60,000 पूर्वजों को तार सकूं। ब्रह्मा ने बताया, गंगा के स्पर्श के बिना ये संभव नहीं है। फिर उन्होंने एक लंबी तपस्या करी, गंगा, इतनी लंबी कि गंगा को आना पड़ रहा था, पर वे देवलोक छोड़ना नहीं चाहती थी। फिर भागीरथ ने शिव से कहा कि वो गंगा के वेग को संभाल अपनी जटा में धारण करे, जिससे कि वो पृथ्वी पर आ सके। इसकी अलग एक और तपस्या करी। शिव तैयार हुए। गंगा ने सोचा वह शिव को बहा डालेगी, क्योंकि वो तो देवलोक से आना ही नहीं चाह रही थी, और यहाँ शिव जी अपनी जटा में उसको समाने की बात कर रहे थे। पर जब वे जटा में उतरी, तो शिव ने उनके अहंकार को महसूस करा और उनको अपनी जटाओं में ऐसा जकड़ा कि गंगा कुछ नहीं कर पाई। अंत में भागीरथी जाते थे, गंगा पीछे पीछे चल पड़ती थी। तो तो रास्ते में जाह्नवी मुनि का आश्रम पड़ा, तो वहां गंगा ने जाह्नवी मुनि का पूरा आश्रम बहा डाला। तो जाह्नवी मुनि को बहुत गुस्सा आ गया, और फिर उन्होंने कहा कि मैं तुमको पी जाता हूँ। गंगा को पी गए। फिर बहुत मुश्किल से भागीरथ ने फिर से उनसे बहुत तपस्या करके कहा कि आप वापस गंगा को धरती पे छोड़ दीजिए। तो फिर गंगा को जाह्नवी ने वापस छोड़ दिया, इसलिए गंगा जाह्नवी के नाम से भी जानी जाती। और फिर कपिल मुनि नहीं, फिर वो कपिल मुनि के आश्रम में पहुंच गए भागीरथी, और गंगा का स्पर्श पाते ही वो 60,000 पूर्वज सदगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार भागीरथी का यह बड़ा प्रयास अपने पूर्वजों को सदगति दिलाने का ये भी पूरा हो गया, और उन्होंने इस जन्म को भी सार्थक बना लिया, क्योंकि वो सेल्फ रियलाइज्ड ब्रह्म ज्ञानी, जीवन मुक्त और महा आनंद में सदा रहने वाले एक बहुत ही अद्भुत इंसान थे। इस तरह से
हमारी आज की योग वशिष्ठ की सब बातें पूरी हो गई।